Solution of questions which were given in lecture 2. The quadratic equation px equals to 0 with real coefficients has purely imaginary roots. So let us assume px be ax square plus bx plus c. Now roots are minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. और ये इक्वेशन बोल रहा है कि प्योरली इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो b जीरो होना चाहिए क्योंकि b रियल है, और अगर ये b जीरो नहीं होगा तो प्योरली इमेजिनरी हो ही नहीं सकता, तो b जीरो होगा। और अगर b जीरो हुआ तो ये टर्म जीरो, तो ac पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ac नेगेटिव हो जाएगा तो ये टोटल टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट में पॉजिटिव, तो इमेजिनरी नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ से हमें दो बात निकला, b जीरो ac ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो b जीरो होने से हमारा एक्चुअली में इक्वेशन जो हो गया वो हो गया ax स्क्वायर प्लस सी। नाउ विल ट्राई टू फाइंड द कंपोजिशन px। ओके, तो x के जगह पर फिर से हम डालेंगे ax स्क्वायर प्लस सी। सो p कंपोजिशन px इक्वल्स टू 8 टाइम्स ax स्क्वायर प्लस c होल स्क्वायर प्लस c। Now 8 times a square x power 4 plus c square plus 2ac x square plus c equals to 0. Now aq x power 4 plus 2a square c x square plus ac square plus c equals to 0. Now if we assume x square equals to t, we will get a quadratic in t, a cube t square plus 2a square c t plus ac square plus c equals to 0. Now we have to check the roots of this quadratic so that we can find the x. Okay, so let's take discriminant b square minus 4ac, which is 4a power 4c square minus 4ac, which is 4a power 4c square minus 4a power 4c square minus 4a cube c. Now this cancel out. Now d is equals to minus 4a, we can write this a square ac. Now a square is positive, okay, ac is also positive from here, so this whole term is negative, so d is less than 0. So the discriminant is less than 0, so the roots of this quadratic are not real. Okay, so x will not be real, so all real roots, option wrong, option B wrong, 2 real roots wrong, no real roots will be there. Okay, now we have to check that whether purely imaginary roots are there or not. So let us check the t coefficient, that is 2a square c. Like here, if b was 0 and the coefficients were real, the quadratic has purely imaginary roots. ओके, क्योंकि जो रियल पार्ट है वो तो जीरो हो गया, अब बचा यही पार्ट है जो इमेजिनरी बनाता, तो ये रियल पार्ट जीरो हो गया तो इमेजिनरी पार्ट बचा तो प्योरली इमेजिनरी हो गया। तो उसी तरह से इस क्वाड्रेटिक में हम देखेंगे कि जो b है 2a स्क्वायर c, क्या ये जीरो है? नहीं, दिस इज नॉट जीरो बिकॉज ac इज ग्रेटर देन जीरो, सो नाइदर a इज जीरो, सो नॉर a इज जीरो, c इज जीरो, so this is not zero, so this has not purely imaginary roots, so only purely imaginary roots is wrong, so option D is correct, neither real nor purely imaginary roots. तो इसके रूट्स कैसे होंगे? मतलब इमेजिनरी होंगे, उसमें प्योरली नहीं होंगे, रियल पार्ट भी होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स भी होंगे. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. There are two questions which I had given. First question, I had made the solution of this question. First, make the quadratic in x. Now there are two cases. Case 1, when y is not equals to 1, then this is a quadratic. So we will find the range with the help of d greater than 0.
we find here we find the range 0 close 0 to 1 close, but we had taken the option y not equals to 0, so we'll reject 1. I had rejected here. Now we'll take a special case when y equals to 1 and we put 1 here, and we'll get that this vanishes, so it's 6. 7 times 1 is 7, minus 1 6 equals to 0, which is totally absurd, which is totally wrong. So y is not equals to 1 is not in the range. Okay, so the range is close interval 0 comma open interval 1. Now if you put 1 here, you can find that there are no value of x for which the range is going to be 1. ओके ऐसे क्वेश्चन में जब आप रेंज निकाल लें तो आप रेंज के अंदर के किसी भी वैल्यू के यहाँ पर रखेंगे अगर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोई ना कोई x निकल के आएगा. x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई ना कोई आएगा वैसे. ठीक है, अगर इससे बाहर का कोई भी रेंज रख के यहाँ पर देखें तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं. इससे हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ हमारा रेंज हमेशा यही होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. If x is real, the maximum value of this. Now you can find the solution of this by this method. Okay, you can assume this y, cross multiply, make quadratic in x and find the range. The maximum value will be the answer of this question. Now there is one method also, one approach to do this is you can just simplify this like 3x square plus 9x plus 7 upon 3x square plus 9x plus 7 plus 10 upon 3x square plus 9x plus 7. ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पे केवल कांस्टेंट टर्म अलग दिया हुआ है, बाकी एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म दोनों सेम दिए हैं, तो हमने इसका फ़ायदा उठाया. 17 को 7 प्लस 10 में तोड़ दिया, इसको अलग ये 1 हो गया और प्लस इसका निकालेंगे. अब इसमें फ़ायदा ये है कि ये क्वाड्रेटिक है जिसका d लेस देन 0 है, क्योंकि बी स्क्वायर 81 माइनस 12 7 जो 84 दैट इज माइनस 3. d लेस देन 0 है और ये क्वाड्रेटिक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है क्योंकि 3 पॉजिटिव होगा. तो इसका रफ स्केच अगर बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा. तो ये इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो माइनस डी अपॉन 4a होगा, माइनस डी अपॉन 4a. अब देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, इसका मैक्सिमम होना चाहिए. इसका मैक्सिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा. डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही ये बड़ा होगा वैल्यू, और डिनोमिनेटर सबसे छोटा क्या हो सकता है, सबसे छोटा यही हो सकता है माइनस डी अपॉन 4a. ये फायदा हो गया हमें. तब माइनस डी अपॉन 4a निकालेंगे अगर तो माइनस डी प्लस हो जाएगा 4a 4 टाइम्स 3, तो ये आ जाएगा 1/4. अब 1/4 यहाँ करेंगे 10 अपॉन 1/4, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 दैट इज 1 प्लस 40 दैट इज 41. थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लगाए और इजीली सॉल्व हो गया. दिस वाज इन AIEEE 2006. ओके, लोकेशन ऑफ रूट्स. लेट fx be a quadratic equation ax square plus bx plus c and alpha and beta be the roots. So the position of alpha and beta with respect to some specific number on a number line is called location of roots. Okay, इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको एक बार देखते हैं पहले. Let this is a quadratic equation where m is variable. तो ये बोल रहा है कि m के वैल्यूज बताइए जिसके लिए दोनों रूट्स 2 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 2 हो. इसके लिए हमें क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके हेल्प से हम m का वैल्यूज बताते हैं. ओके, तो ये टॉपिक में हम उन कंस्ट्रेंट्स को निकालने की कोशिश करेंगे. ओके, तो पहले मैं a ग्रेटर देन 0 के लिए निकाल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ a लेस देन 0 के लिए आप खुद से डिराइव करें सारे कंस्ट्रेंट. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये स्टेटमेंट के हिसाब से टाइप 1 जो है उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे. तो ये बोल रहा है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर d. तो इसके लिए सुटेबल ग्राफ
अगर हम बनाएं ये बनेगा और डी हमारा कहीं इस रीजन में होगा, ये डी हो गया। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो दोनों रूट्स जो हैं किसी स्पेसिफिक नंबर डी से बड़े हैं, तो इसके लिए यही रीजन हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रेंट इस डी के हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे जिसके लिए ये ग्राफ जस्टिफाई करे, ठीक है। डी जो है इस रेंज में हो, उसके लिए हम कंस्ट्रेंट कंडीशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला हम देख रहे हैं कि डी यहाँ पर जब जहाँ है वहाँ एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो बोलने से हमारा पॉइंट इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इधर भी तो आ सकता है। एफ ऑफ डी बोलने से यहाँ पर भी तो डी हो सकता है, तो एफ ऑफ डी जो है सफिशियंट कंडीशन नहीं हुआ हमारा। तो एक पॉइंट और बोल सकते हैं हम कि डी जो है माइनस बी बाई टू ए से छोटा होना चाहिए। ये माइनस बी बाई टू ए हुआ। अब माइनस बी बाई टू ए से अगर डी छोटा होगा तो इधर आ जाएगा, इधर नहीं आएगा। ये जो इधर जा रहा था डी, इस कंस्ट्रेंट से इधर आ गया। तो ये दो कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि डी जो है वो इस रीजन में होगा। एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो ये इंश्योर कर रहा है कि डी इस रीजन में ना जाए, और डी लेस देन माइनस बी बाई टू ए इंश्योर कर रहा है कि डी माइनस बी बाई टू ए से पीछे ही रहे, छोटा ही रहे, ओके। लेकिन अगर एक और हम अगर ग्राफ बनाएं ए ग्रेटर देन जीरो का, तो ये भी एक ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ हो सकता है। और डी अगर हम यहाँ पर देखें और ये हो गया माइनस बी अपॉन टू ए, तो एफ ऑफ डी यहाँ पर भी पॉजिटिव है और डी यहाँ पर भी माइनस बी बाई टू ए से छोटा है। तो क्या ये दोनों कंस्टेंट इसके लिए फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो रूट्स ही नहीं है। तो एक और कंडीशन हमारे लिए जरूरी हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें ये केस भी चल जाएगा डी इक्वल्स टू जीरो पर। अगर ये भी केस होगा डी हमारा, तो फिर हमारा डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन माइनस बी बाई टू है। ये तीन कंडीशन हमारे यहाँ फर्स्ट टाइप के लिए निकल के आया, ठीक है। अब इसी में टाइप 2 है, टाइप 1 में ही सेकेंड पार्ट है कि डी जो है बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन डी, ओके। तो इसका हम सुटेबल पहले ग्राफ बनाएंगे कि जिससे ये हमारा स्टेटमेंट दिखे ग्राफ में। तो कुछ ऐसा बनेगा, डी इस रीजन में अब होगा क्योंकि दोनों रूट्स जो हैं वो स्पेसिफिक नंबर से छोटे हैं, ओके। तो इसका हम अगर कंडीशन बनाना चाहें तो इसमें भी वही बात होगा, एफ ऑफ डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। एफ ऑफ डी का मतलब कि एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स का वैल्यू हम डी डालेंगे, तो जो वैल्यू आएगा उसे हम बोलते हैं एफ ऑफ डी। और ये वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है तो हम बोलते हैं कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इसके लिए। दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा डी जो है इस बार माइनस बी बाई टू से बड़ा होगा क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में डी है। और तीसरा कंडीशन होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ओके। ये तीन कंडीशन है जिससे हम बोल सकते हैं कि बोथ रूट्स जो होंगे डी से स्मॉलर होंगे। अब अगर ए लेस देन जीरो होता तो कैसा ग्राफ बनता? अगर इसके लिए हम देख रहे हैं ए लेस देन जीरो होता तो पैराबोला ओपनिंग डाउनलोड होता और हम बोल रहे हैं कि डी इधर होता कहीं ताकि दोनों रूट्स इससे बड़े हों। तो इसमें क्या बनते हैं? इसमें भी पहला तो बनता भाई कि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो डिस्क्रिमिनेंट ताकि दो रूट्स हों। दूसरा इसमें बनता एफ ऑफ डी जो होता है वो इसमें लेस देन जीरो होता क्योंकि एफ ऑफ डी ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और तीसरा कंडीशन होता है स्मॉल डी लेस देन माइनस बी बाई टू ए। तो कितनी आसानी से आप भी ये सारे कंडीशंस बना सकते हैं खुद से, ठीक है। टाइप 2 बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ए फिक्स्ड नंबर डी और वी कैन से दैट डी लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। So the suitable graph of this statement will be like this. D lies between the roots of the given equation. So D is between these two roots. Okay. अब हम फिर से कंस्ट्रेंट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये इंश्योर हो जाए कि D इसके बीच में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे D जब है तो क्वालिटी का वैल्यू नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं कि f of D लेस देन जीरो।
अब देखिए एफ ऑफ डी लेस देन 0 बोलने से ही डी हमारा इन्हीं के अंदर ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही डी बाहर जाएगा एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 होगा, और वो हमने बोला ही नहीं है। तो केवल एफ ऑफ डी लेस देन 0 बोल देने से हमारा कांस्टेंट बन गया, डी इसी में रहेगा बिटवीन द रूट्स। ओके, नाउ आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इसी से मेरा यही सफिशियंट है। आप इसको भी ले सकते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं भी लेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ओपनिंग अपवर्ड है ए ग्रेटर देन 0, और वो इक्वेशन किसी भी एक नंबर के लिए नेगेटिव हो रहा है, तो ये नेगेटिव होना ही ये बात का गारंटी कर रहा है कि उसके दो रूट्स हैं। क्योंकि अगर एक ओपनिंग अपवर्ड इक्वेशन है और एक बार वो नेगेटिव हुआ, इसका मतलब एक्स एक्सिस को कट किया होगा, और फिर इसको ऊपर ही जाना है तो फिर एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एक बार इसको नेगेटिव आने के लिए एक बार आते समय एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा और एक बार जाते समय एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ ही ऐसा होता है। तो एफ ऑफ डी लेस देन 0 ही नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन यहाँ पर हुआ। आपको अलग से डिस्क्रिमिनेंट को डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं करना है, क्योंकि एफ ऑफ डी लेस देन 0 ही बात को इंश्योर कर रहा है कि इसके दो रूट्स हैं। ओके, टाइप 3, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल डी, ई, exactly one root. Okay, so the graph will be like this, D and E. So exactly one is root is between D and E, and another graph may be like this, D, E. Okay, ये दोनों केस में एक रूट जो है वो D और E के बीच में है। ओके, तो एक ग्राफ की हेल्प से हम देखें अगर, तो एक इसके लिए हम बोल सकते हैं एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ ई लेस देन 0 है। और इस ग्राफ में अगर हम देखें तो एफ ऑफ डी लेस देन 0 है और एफ ऑफ ई ग्रेटर देन 0 है। तो दोनों अगर केसेस को कंबाइंडली अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ ई विल बी लेस देन 0, क्योंकि एक बार D पॉजिटिव है E नेगेटिव है, एक बार D नेगेटिव है E पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट हर बार नेगेटिव होगा। तो अगर ये हम केस बोलें तो हम बोल सकते हैं कि ये केस ये चीज़ को सुनिश्चित करेगा कि एक एग्जैक्टली एक रूट जो है वो इन दोनों के बीच में होगा। और फिर यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलग से केस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी फिर वही बात होगा सेकेंड टाइप का कि एफ ऑफ ई जो है नेगेटिव हो रहा है। तो एक बार ये नेगेटिव होना ही ये बात को इंश्योर कर देगा कि इसके दो रूट्स हैं। सो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल। टाइप 4, बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन द नंबर डी एंड ई वेयर डी इज लेस देन ई। सो द ग्राफ विल लुक लाइक this. These are the two roots and this is D, this is E. So the roots are confined between D and E. अब देखते हैं क्या कंडीशन बन सकता है, क्या कंस्टेंट बन सकता है। एक तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ डी जो है ग्रेटर देन 0 होगा, वही दूसरा बोल सकते हैं एफ ऑफ ई जो है वो भी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं ऐसे कि एफ ऑफ डी एफ ऑफ ई ग्रेटर देन 0, एक साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों पॉइंट जब अंदर हो जाए इसके यहाँ पर, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी केस इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए इंडिविजुअली हमको बोलना होगा कि एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ ई इज ग्रेटर देन 0। अब क्या हुआ कि ऐसा हो सकता है इस कंडीशन से कि ई यहाँ पर हो तो भी तो एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ ई ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ये सफिशियंट कंडीशन नहीं हुई। तो इसके लिए हम एक और कांस्टेंट चाहिए, बोल सकते हैं हम कि D मस्ट बी लेस देन -b/2a एंड -b/2a मस्ट बी लेस देन E। अब क्या हुआ कि ये -b/2a है, अब D क्या हुआ कि इससे छोटा और E इससे बड़ा हुआ, तो अब एक ही साइड नहीं हो सकता। इससे क्या हुआ, तीनों कंस्टेंट से क्या हो गया कि ये D और E एक किनारे किनारे होंगे।
ठीक है। अब एक केस यहाँ पर भी आ सकता है कि क्या अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं हुए तो क्या होगा, तो भी डी एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो होगा, एफ ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो होगा, और डी माइनस बी बाई टू ए से छोटा होगा, और ई माइनस बी बाई टू ए से छोटा बड़ा होगा। ये तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फिर भी दोनों जो रूट्स हैं वो डी और ई के बीच में कन्फाइंड नहीं है, क्योंकि रूट्स हैं ही नहीं। तो इसके लिए हमें बोलना होगा यहाँ पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब एफ ऑफ डी लेस देन जीरो हो रहा है, कोई पॉइंट के लिए नेगेटिव हो रहा है, तो वहाँ पर डी डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन जीरो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे केवल एफ ऑफ डी लेस देन जीरो से ही ये इंश्योर हो गया कि उसके दो रूट्स हैं। लेकिन एफ ऑफ डी एफ ऑफ ई जीरो से बड़ा होना ये इंश्योर नहीं कर रहा है कि उसके दो रूट्स हैं। तो इसीलिए हमें अलग से दिखाना होगा कि उसके दो रूट्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अलग से हमें दिखाना होगा। ओके, सो दीज आर द 4 कंडीशंस फॉर टाइप 4. Type 5. One root is greater than E and the other root is less than D. So these are the two roots. One root is greater than E. E से एक रूट बड़ा है और एक रूट जो है वो D से छोटा है। तो ऐसा ये बनेगा ग्राफ, मतलब D और E दोनों जो हैं वो रूट्स के अंदर हैं। डी और ई दोनों जो पॉइंट्स में स्पेसिफिक नंबर्स वो दोनों रूट्स के अंदर हैं। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ डी जो है वो लेस देन जीरो हो, तो ये भी अंदर हो गया, और एफ ऑफ ई जब होगा लेस देन जीरो ये भी अंदर हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन से क्या हुए, दोनों अंदर हो गए। और फिर यहाँ पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव है, इसका मतलब कि रूट्स उसके दो हो गए। तो यही दो सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन हुए टाइप 5 के लिए। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट इज बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, मीन्स द बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर। सो देयर आर 3 कंस्ट्रेंट्स, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन जीरो, एंड डी 2 is less than minus b upon 2a. So by solving the d greater than 0 discriminant, we get m minus infinity to close interval 1 union close interval 9 to open interval into infinity. And when we solve f of 2 greater than 0, we get m less than 10 and 2 less than minus b upon 2a, we get m is greater than 7. Now we'll take the intersection of all these 3 cases. First is m1 minus infinity to 1, 9 to infinity. Now second is when m is less than 10, here is 10, m is less than 10. Third is m is greater than 7. The intersection of all these 3 is this point, this interval. So our answer will be m belongs to 9 close interval to 10. Okay, so for these values of m, this quadratic equation will have roots which are greater than 2. Okay, now second question, if 3 lies between the roots of the equation, so only one condition, check f of 3 less than 0. For this we get m greater than 9. Okay, now if we put m greater than any m greater than 9 and try to find the quadratic. Let's take m equals to 10. For m equals to 10, the quadratic will be x square minus 7x plus 10 equals to 0. So it is x minus 5 and x plus x minus 2. So 5 and 2 are the roots of this quadratic. So this quadratic look like this.
So it is 2, it is 5, and 3 is between the root. Okay, so it's true for all m greater than 9. This quadratic 3 lies between the roots of this equation. Do this question, we will discuss in the next video lecture. Okay, thank you.